After a long 30-year career in the year 1998, when I hung my gloves as a director, my film Zakham, which was autobiographical, also ran into trouble with the censors when we had the chairperson was our dear Asha Parekh ji. I had to fight with the government of the day and finally release my film at huge costs. Subsequently, the film got a national award for Best Film on National Integration and even Ajay Gora Award. But what was heartbreaking was what I was subjected to. The year is 2016. India has entered a new age. There are more young people today speaking a different language, globally connected, having aspirations to match the mightiest nations in the world. On my right is Alia and Shahid, on the left is Zoya. Ekta sits behind me. They are the people who are the future, who dream larger dreams than we dreamt. All our talk of growth and progress is poppycock if the perfume of freedom which the founding fathers gifted to us is taken away. Do you want to make India into a Saudi Arabia where there's opulence, wealth, but not the most prized asset, the right to free thinking? A society that does not respect free thought sows the seeds of its own destruction. You cannot certify something as adult and ask for 89 cards. What are you saying to the adult population of your country? That they are not fit, they're not equipped, they're not going to process this movie properly? I mean, you cannot take that away. That is one issue. The second thing is, I think, a constant denial of what's going on in society. Everything is like it doesn't exist. You know, digging your head in the sand, there's no drug problem, there's no marital rape, there's no racism, I mean, it's just ridiculous. You cannot fix a problem. The first thing to do is you have to address it. So I think freedom of expression is important because the sole purpose when you're an artist at the core is to hold up a mirror to society. And you need to allow people to do that. There are a lot of films out there that offend me. I see certain promos, I see certain trailers, I see certain scenes where women are treated a particular way, and it angers me. But I cannot ban that. It's made. It's my choice to not buy that ticket. And I think Udta Punjab has to release the way it is. I mean, this is a fight not just of the filmmaker and the producers. I mean, this is a fight for all of us because it could be anybody. माहौल डर का हो गया है. इनफैक्ट 2 दिन पहले की बात है जब ये बात मीडिया में उतनी फैली नहीं थी और ये मीटिंग्स चल रही थी हमारी सर्टिफिकेशन बोर्ड के साथ, तो मैं इतना परेशान था कि रात को 3-3:30 बजे मैंने इनको मैसेज किया अपने मित्रों को, विकास को और मधु को कि यार छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, जो हो रहा है लेट्स रिलीज द फिल्म विद द कट्स बिकॉज बहुत पंगा हो जाएगा, कौन झेलेगा. नहीं होता मेरे से यार, इतनी हिम्मत नहीं है. कल को रिलीज़ हो जाएगी, फिर कोई खड़ा हो जाएगा, मेरे ऊपर केस कर देगा, आपको परेशानी होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ होगी. क्या है, किसके पास इतना टाइम है सब करने के लिए. चलो रात गई बात गई. अगले दिन जब मैं इनसे मिला तो हम लोगों ने बात की फिल्म के बारे में और हमें यही एहसास ये हुआ कि यार अगर हम चाहे रिलीज़ हो कट के साथ चाहे ना हो, लेकिन आज अगर हम पीछे हट जाएंगे तो फिर वो दूसरा जितने भी फिल्म मेकर जो आगे फिल्म बनाएंगे वो कोई भी एक पॉलिटिकल फिल्म नहीं बना सकता, कि कोई भी रियल इंसिडेंट पे फिल्म नहीं बना सकता, किसी भी शहर का नाम नहीं ले सकता, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ कह नहीं सकता. तो ये तो मतलब फिर बहुत ये मॉरली मुझे बहुत गलत लगा. मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वी लिव इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और अगर हमारे जेनरेशन को, यूथ को इन्फॉर्म्ड रहने की इजाज़त नहीं है तो शायद कोई परेशानी है. द यूथ हैज़ द राइट टू नो दैट ड्रग्स आर अ मेनेस. दे हैव अ राइट टू नो कि उनके जीवन के साथ क्या हो सकता है अगर वो ड्रग्स में जाते हैं. फिर वो पंजाब का यूथ हो, महाराष्ट्र का यूथ हो, पूरे हिंदुस्तान का यूथ हो या पूरी दुनिया का यूथ हो, ये फिल्म जो मैसेज दे रही है उस मैसेज को सपोर्ट करने की ज़रूरत है. और ये फिल्म इट्स काइंड ऑफ बिकम द फेस ऑफ अ फाइट जो कई सालों से चल रही है, कि लोगों को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए. शायद इसीलिए 2016 में हम यहाँ खड़े हैं, बिकॉज शुरुआत में ही अगर एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता तो ये दिन ही नहीं आता. सो लेट्स मेक श्योर वी स्टिक टू व्हाट दिस कंट्री स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट एवरीबडी हियर इज ट्राइंग टू फाइट फॉर. दैट्स इट. फॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे बैठ के जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि हम जो है
फिल्म बनाते हैं हमें अपनी इंटीग्रिटी जस्टिफाई करनी पड़ती है, हमें अपनी ऑनेस्टी जस्टिफाई करनी पड़ती है, हमें अपनी ईमानदारी जस्टिफाई करनी पड़ती है। हमें जा ऐसा लगता है कि हमें हर स्टेज पे हर चीज़ के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए। जब तक हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टैंप नहीं हो कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेरा फिल्म मेकर, मैं कोई इंटेंशन नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक फिल्म मेकर जो इतनी दूर से आया था यहाँ पे सिर्फ फिल्म बनाने। हम मुझे नहीं मालूम था कि हम लोग को इतने पहाड़ खोदने पड़ते हैं, इतने समुंदर पार करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब पहली फिल्म बनानी शुरू की तभी समझ में आ गया था कि हाँ, जब बहुत ही इनोसेंस में मैंने एक फिल्म बनाई थी ब्लैक फ्राइडे, जिसको सब लोग बोलते हैं कि अरे अनुराग कभी दोबारा ब्लैक फ्राइडे नहीं बना पाता, इसलिए नहीं बना पाता कि उस एक फिल्म ने मेरा इनोसेंस खत्म कर दिया था। उस फिल्म को निकालने के प्रोसेस में मैं इतना ज़्यादा अवेयर हो गया था कि यहाँ पे आप क्या नहीं कह सकते हो, क्या कह सकते हो, क्या आपको कहने नहीं दिया जाएगा, किस चीज़ के लड़ना पड़ेगा। उस एक फिल्म ने मेरा पूरा इनोसेंस खत्म कर दिया था। तब से मेरी लड़ाई रही अपने आप से कि मैं उसको वापस पा सकूं जो आया नहीं कभी। और ये जो है, हम लोग उसके बावजूद कोशिश करते रहते हैं कि हम फिल्म करें। फिल्म जब बनाते हैं तो हाँ ठीक है, मैं एक तरह की का सिनेमा जो मैं देख सकता हूँ, बना नहीं पाता हूँ, वो मेरी शॉर्टकमिंग है, वो मेरी मजबूरी है, या मुझे समझ में नहीं आता। मैं देख सकता हूँ, मैं बना नहीं पाता। बनाऊंगा तो मुझे मालूम है कितना नुकसान होगा सबका। हाय भट्ट साहब, मैं भी बोल रहा हूँ। फिल्म हम लोगों ने नहीं देखी है, फिल्म के अंदर क्या है ये बाद में पता चलेगा, बट एनीथिंग दैट अटैक्स द फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, and I don't think we have to tolerate it unnecessarily. And the good thing is that we are together over here, and we'll see what happens. And there are lots of friends of mine who are in this film, but that's still not the reason. The reason is for me personally to have the ability to say what I want to say and to be taken and considered with dignity by the society. That just because we are filmmakers, it's not as though, as Anurag said, we need some stamp or approval from anybody.